15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، چما چما بارشیں، چما چما بارشیں، انوار و رحمت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، آمنہ بی بی کے گھر آقا کی آمد ہو گئی، آمنہ بی بی کے گھر آقا کی آمد ہو گئی، سب پکارو عاشقوں، سب پکارو عاشقوں، ماہ رسالت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، مرحبا آقا کی آمد مرحبا، صد آفرین، مرحبا آقا کی آمد مرحبا، صد آفرین، آ گئے دنیا میں آئے، آ گئے دنیا میں آئے، جان رحمت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آمنہ کے لال کی توڑو سواری آ گئی، آمنہ کے لال کی توڑو سواری آ گئی، مانگ لو فردوس میں، مانگ لو فردوس میں، سے رفاقت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، اے حلیمہ تیری گودی میں محمد آ گئے، اے حلیمہ تیری گودی میں محمد آ گئے، قابل صدر اشک بی بی، قابل صدر اشک بی بی، تیری قسمت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، مدنی پرچم اپنے اپنے گھر پہ لہراؤ سبھی، مدنی پرچم اپنے اپنے گھر پہ لہراؤ سبھی، آج آئے ہیں جہاں میں، آج آئے ہیں جہاں میں، شاہ امت مرحبا، 15 صوبہ جشن ولادت مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، جو ولادت خوشی کرتا ہے ہر دم خوش رہے، جو ولادت خوشی کرتا ہے ہر دم خوش رہے، ہو صدائے صدر خدا، ہو صدائے صدر خدا، ہو
خدا تیری عنایت مرحبا تیرا صوبہ ہے جشن ولادت یا نبی حسنین کا صدقہ بقیہ پاک میں یا نبی حسنین کا صدقہ بقیہ پاک میں یا نبی حسنین کا صدقہ بقیہ پاک میں آپ کے ابتار کی آپ کے ابتار کی بن جائے تربت مرحبا تیرا صوبہ ہے جشن ولادت مرحبا چھما چھم بارشیں چھما چھم بارشیں انوار و رحمت مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا بھی مضبوط ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تحفے ملے اچھے اچھے، یہ ملا ہے بابا جان سے، انہوں نے کہا تھا شام کو بچوں کو بلائیں گے تو تحفے دیں گے، تو میں بھی آگے بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بھی تحفہ دیا تھا۔ ویسے پہلے بڑا پریشان ہے سی، اتنے آن تے ماشاءاللہ سکون ملا ہے، تے امید بڑی ہے کہ جی واپس جائیے جس طرح آئے اس طرح نہیں کم از کم کچھ سیکھ کے جائیے اتوں۔ نماز کا ساڈا کورس 4 یا 7 دن کا جی، اندر جو ماشاءاللہ سیکھن کا مل رہا جی، غسل دے فرض قرآن مجید بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی سیکھ کے جائیے تاکہ دین کا کام اسی کریے انشاءاللہ تعالی۔ علم دین سیکھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ حاصل کرنا، یہ تینوں چیزیں یکساں طور پر ہمیں ایک ہی وقت میں مل رہی ہیں کہ میرے اہل سنت ہمیں دین سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ پیر صاحب کی کرم نوازی ہے، اور یقین مانیں کہ میں تو کہوں گا امیر اہل سنت کی زندگی میں ان کی کما حقوق قدر کریں اور ان سے علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے بنے۔ نکاح کے بعد، شادی کے بعد مطلب کس طریقے کی لائف انسان کو گزارنی چاہیے، مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملی۔ کل مجھے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں والدین کی طرف سے بہت اچھی بات لگی ہے، ان کی خدمت کرنا بہت لازمی چیز ہے۔ یہاں پہ میں آیا تو ایک اسلامی بھائی نا پانی پینے کے لیے آئے، ساتھ ہی دوسرے آئے، تو میں نے نا ویسے جان پوچھ کے کہا کہ نا میں کس کو پہلے دوں، آپ بتا دیں۔ ایک نے کہا ان کو دے دو، ان کا تب نہ توجہ نہیں تھی۔ میں نے دوسرے بھائی سے میں نے کہا آپ بتائیں میں پانی کس کو دوں، ان کا دوسرے کو دوں۔ اگلے کا یعنی سوچنا ہے کہ اگلے کا بھلا ہو جائے، یہ دل کو اچھا لگا۔ ویسے ماشاءاللہ مجھے بتا رہے ہیں اسلامی بھائی جو آئے ہیں ہمارے ساتھ کہ یار بہت اچھا ماحول ہے، اور ایسا ربیع الاول منانے کا یہ ہمیں پہلی بار موقع ملا، اور پھر 1500واں جشن ولادت ہمیں عالمی مدنی مرکز میں منانے کا موقع مل رہا ہے۔ میری تو اپنی بہت زیادہ خوشی ہے، یہ بہاریں برکتیں ہم عالمی مدنی مرکز میں لوٹ رہے ہیں۔ ماسٹر ہماری زندگی میں پہلی بار 1500واں جشن ولادت آیا ہے تو الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ میری بھی نیت ہے الحمدللہ 1500 بار روزانہ درود پاک انشاءاللہ پڑھوں گا، کوشش کریں گے کہ 12 دینی کام مکمل کریں ہم۔ اس کو ٹچ نہیں کرنا، ٹچ کرو گے بند ہو جائے۔ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف جو نفل ہے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اگر نہیں کی تو اب کر لیں، اور افطار وغیرہ کے لیے اگر کیے تو افطار بھی کر لیں۔
ताहम सवाब के लिए एतिकाफ की नीयत करना मुनासिब, ताकि सवाब मिले। वो जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें, आप भले इफ्तार वगैरह कर लें। और पहले से नीयत की हुई थी, अब दोबारा इफ्तार या खाने के लिए नीयत की हाजत नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की चौथी रात, इस मुनासबत से ज़ियाए दुरूद व सलाम मकतबुल मदीना का जो रिसाला है उसमें से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 4। मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी कम पड़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाये करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों कभी ना गया मदनी चैनल। मैंने ये देखा है, हमारे बाप दादा जैसे मेहनत करते थे, हमने भी मेहनत की है। हम 15-16 साल से मेहनत करते हैं, अब 68 साल की उम्र हो गई है, माशाल्लाह अभी तक मेहनत कर रहे हैं। आज की जो औलाद है वो मेहनत नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि बस शॉर्टकट हमारे पास दौलत आ जाए और हम अमीर हो जाएं, घर में पड़े रहें, खाने पीने को अच्छा हो, कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों, यार दोस्तों के साथ घूमें, ऐश करें, मेहनत नहीं करें। वो दौर कुछ और था, अभी कुछ और है। बाबा जान हमारी रहनुमाई फरमा दे, इस शॉर्टकट से बाहर कैसे निकले, क्या करना चाहिए। आजकल की औलाद मेहनत करना सीख जाए। आप शफकत करें तो ये मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। सारा जो माहौल है ना इस तरह का है, जैसा आपने जिसकी अक्कासी की है, तो अब ये क्या आराम तलब भी बढ़ गई है, तो आसाइशें बढ़ गई। पहले आसाइशों के सामान नहीं थे, यानी कि मैं जब छोटा था ना तो हमारे घर में ट्यूबलाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, गैस भी नहीं था, पानी भी नहीं था। उस वक्त हम मतलब जिस तरह रहते थे हमको पता है, बल्ब जलता था, वो पीली लाइट, पीला उजाला जो देता है वो, ट्यूबलाइट नहीं थी। और पंखा इस तरह करते छोटे छोटे, हम भाई बहन छोटे होते थे तो बारी बारी पंखा भी लेने की तौफीक नहीं थी, पंखा भी पैसों से आता था, तो गत्ता लेते थे और एक दूसरे को बारी बारी पंखा करते थे और खटवल भी काटते थे, बार उसी में हम सोते थे। बारिश आती थी, छत टपकती थी, कभी इस कोने में दुबक गए, कभी उस कोने में दुबक गए। इस तरह मेरा बचपन या मेरा बल्कि सब जो जवानी भी, मेरी शादी भी इसी तरह के घर में हुई है। मगर फिर अब बत्ती, पंखा और गैस भी आ गया था आहिस्ता आहिस्ता, इसकी तरकीब बनती चली गई, अल्लाह का करम है। तो उस वक्त हम पानी भरते थे और नीचे से 2 मंजिला घर पर उठा के चढ़ते थे पानी, कोई बिकाता भी पानी लेते थे, खरीदते भी थे। वो मश्क हम डब्बों में पानी भर के दे जाते थे पानी वाले। तो इस तरह मतलब जिंदगी गुजारी। लाइन का पानी, लाइन का नल नहीं, टंकी रखी रहती थी, बाल्टी, और इस तरह मतलब इस्तेमाल होता था। तो उस वक्त ये चीज़ हमको फील नहीं होती थी। अब आसाइशें इतनी बढ़ गई कि अब अगर ये मिले तो समझो ये 14 साल की कैद से कम नहीं है। अब ये नहीं कर सकते हम बगैर पंखे के, अब नींद नहीं आएगी, गर्मी होगी। तो ये आदतें और आसाइशें इस तरह, अब चूंकि आसाइशें बढ़ गई ना, खाने उम्दा खाने,
फिर पैसा आ गया, गुर्बत थी तो कभी कभार गोश्त पका तो एक आध बोटी मिली। हमारे घर के अफराद हम थे 5, तो बड़े भाई जो थे वो कमाते थे। हम जब अंडा नाश्ते पकाते थे ना तो एक अंडे में 5 अफराद हम खाते थे। आधा अंडा बड़े भाई को मिलता था, ये कमाते थे। बाकी आधे अंडे में मेरी वालिदा, मेरी 2 बहनें और मैं 4 और रोटी खाते थे, तब गुजारा होता था। अब एक वक्त में 2 अंडे भी शायद कम पड़े, ऐसा दौर आ गया है। तो ये वक्त की बात है। तो अब अगर क्या वाकई अब नौजवान वो ना रहे जो ये 68 साल के बुजुर्ग जो कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, तो अब ये नौजवान इतनी मजदूरी भी शायद ना कर सके। तो अब ये कि इनको अगर हम इस तरह अपने किस्से सुनाकर ये कहेंगे ना तो वो बोले अब्बू अपना या दादा जान अपना एहसान जताते सुनाते रहते। तो इनको मतलब शफकत चाहिए। इनको अब आपकी मोहब्बत मूव कर सकती है, आपकी डांट डपट अड़ाउड़ी। मुसीबत ये है कि बुजुर्ग जो होते हैं ना आमतौर पर अड़ाउड़ी घरों में करते होते हैं, डांटते हैं, झाड़ते हैं बच्चों को, बेटों को, पोतों को, बेटियों को। भी बूढ़ा बूढ़ी ये भी कभी कभी मतलब जंग अजीम छिड़ जाती होगी, अड़ाउड़ी मोहल्ला जमा हो जाता होगा। तो इस तरह मतलब केस खराब हो जाते हैं। नरमी, हुस्न अखलाक, प्यार से अगर बेटों को बच्चों को समझाएंगे ना तो अब भी ऐसा नहीं कि मजदूरी नहीं करते। ये बेगारी कौन करता है? बुढ़े थोड़ी करते हैं। इमारतें कौन बना रहा है? बूढ़े थोड़ी बनाते हैं, ये जवानी तो बना रहे होते हैं यार। इतनी इमारतें हमको बना के दे देते हैं, गड्ढे खोदते हैं रोडों पे, तो जवानी तो होते हैं। बल्कि जितने भी मजदूरियों के काम अब भी हजारों हैं, मुबालगा है, तो सब जवान ही कर रहे होते हैं, बूढ़े नहीं कर रहे होते हैं। फौज, पुलिस, रेंजर्स या दीगर जितने भी इदारे हैं सब में जवान होते हैं। और इनकी तो बाकायदा एज की कोई मतलब वो होती है, मतलब फिक्सिंग होती है लिमिट कि इतनी एज हुई तो ये रिटायर, अब ये बूढ़ा हो जाएगा या इतनी इसने सर्विस कर ली तो अब ये घिस पिट गया, अब ये वो काम नहीं देगा जो जवान देता है। तो यूं मेहनत मजदूरी करने वाले ना होते तो दुनिया का निज़ाम भी ना चलता। लेकिन अब जो मेहनत मजदूर तो इनको आसाइशें भी देनी होती हैं, आसानियाँ भी देनी होती हैं, ये भी होता है। लेकिन जो बेचारे मजदूर होते हैं ना जवान, इनको आसाइशें कम होती हैं। ये धूप में काम कर रहे होते हैं, इमारतों पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, वजन उठाते हैं, ये कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक सब पर रहम करे। तो बुजुर्गों को भी चाहिए कि अपनी औलाद पर, दोस्तों पोतों पर शफकत का हाथ रखें। ये डांटना जो है ना, डांटना ये अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। आपके घर का माहौल अच्छा ना हो जाए तो आपके पैसे वापस मुझसे ले लेना। ये एक मुबालगा कर रहा हूँ समझाने के लिए। डांट डपट से चलो, बूढ़ा मारता नहीं है, तुम जवान को क्या मारेगा, जवान को लगेगा भी नहीं मारेगा तो। लेकिन ये बोबड़ी जो है ना जबान, ये मतलब जो ऐसा मारती है कि पूछो मत, स्टेट फायर कर रही होती है। तो इसको अगर कंट्रोल कर लिया ना जबान को, तो घर का माहौल दुरुस्त, नौजवान आपके आगे पीछे होंगे, आपसे मतलब यानी कि मानूस रहेंगे, मोहब्बत करेंगे, आपके काम आएंगे, खिदमत करेंगे, टांगे दबाएंगे, सब कुछ करेंगे। वरना फिर जो हो रहा है वो आपको पता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद विजदान सिद्दीकी है, ताल्लुक़ शहर कराची से। मेरा सुन्नत से ये सवाल है कि अगर जश्न विलादत का झंडा या बैनर ज़मीन पर गिरा हुआ मिले तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो जहन जाता है कि ये किसी की बालकनी या स्कूटर वगैरह से गिरा होगा, तो वो हो सकता है कि ढूंढता हुआ आए और ले जाए, जबकि दूसरी तरफ बेअदबी का अंदेशा होता है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब कम अज़ कम ऐसी जो अदब की चीज़ें ना उठा कर को ऐसी अदब की जगह रख दी जाए, वरना वो गाड़ियाँ और इसको या पाँव तले रोंद कर, तो आप नहीं उठाएंगे तो उठाने वाले बहुत मिल जाएंगे, उठा कर घर ले जाएंगे अपने। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसकी कीमत बनती है ना, गिरी पड़ी चीज़, तो ये लुक़ता कहलाती है। इसको हम उठाकर अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अगर अपने लिए उठा भी लिया, अपनी नीयत से उठाया, तो ये हराम है हमारे लिए। गस्ब की ये सूरत है
اور فرض ہے کہ اس کا مالک تلاش کر، واجب ہے اس کا مالک تلاش کرے اور اس کو مطلب مالک تک پہنچائے۔ اب مالک نہیں ملتا، امید قطع ہو گئی، ختم ہو گئی، ابھی نہیں ملے گا مالک، جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، تو اب یہ پھر کسی ایسے شخص کو دے دیں، شرعی فقیر کو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ اس کا حل ہے۔ اس لیے اپنی نیت سے تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے، کسی کی گری پڑی، ہاں اس لیے اٹھائی کہ اس کے مالک کو ڈھونڈوں گا، تو یہ اپنے لیے اٹھانا نہ ہوا، تو اب اس کے مالک کو ڈھونڈے، اور اس ثواب کا کام ہے، مالک مل جائے۔ اور اس میں یہ کیا ہے، اس کو جو اپنے لیے نہیں اٹھائی تھی یہ غالباً واپس وہ رکھ بھی سکتا ہے، میرا خیال ہے، دیکھا آپ نے، جو چیز اپنے لیے نہیں اٹھائی لقطہ کہ مالک کو میں دے دوں گا ڈھونڈ کر، پھر یہ کہ اب کہاں ڈھونڈوں گا، وہیں رکھتی تو صحیح ہے نا، جائز ہے، وہیں رکھتی تو بھی جائز ہے، تھوڑا سائڈ میں رکھ دے کہ جہاں مطلب کچل کچلا نہ جائے، گندگیاں ہو، جیسے جھنڈا شریف زمین پر، یہ سوال یہی تھا کہ جھنڈا شریف زمین پر دیکھا جشن ولادت کا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک ادب کی شے ہے، تو زمین پر ڈالنا یہ کسی کو بھی مزہ نہیں آئے گا اس میں، تو یہ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دے، اوپر یا ایسی جگہ پر جہاں ادب ہو، بے ادبی نہ ہو۔ یعنی ایسی چیز ہو جس کی کوئی قیمت بنتی ہو، جی یہ پہلے عرض کرتے ہیں کہ قیمت بنتی ہو، ورنہ اور رسی کے ٹکڑے تو لکڑی کے ٹکڑے تو تن کے اور اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ہمارے یہاں پھینکتے ہیں، باہر ملکوں میں اس سے قیمتی چیزیں بھی پھینکنے کا رواج ہے، مجھے پتہ ہے اس کا، تو جہاں جیسا عرف ہو، اور وہ جگہ پھر پھینکنے کی جگہ پر یا تو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں، لیکن جو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کچرا کنڈی کے قریب رکھ دیتے ہیں، اگر کوئی چاہے تو اٹھا بھی لے جائے، یہ میں نے دیکھا، یہاں تک کہ کلمہ شریف، آیتیں وغیرہ کے ٹکڑے بھی میں نے کچرا کنڈی کے قریب رکھے ہوئے دیکھے، میں نے اٹھائے بھی ہیں، اور یہاں زیارت بھی کروائی ہے کسی دور میں کہ میرے کو یہ زمین سے میں نے کچرا کنڈی قریب سے اٹھایا، تو بدقسمتی سے بس ہے نجیب و غریب لوگوں کا ہو گیا ادب آداب جو ہمارے یہاں ہے نا، ہمارے مسلمانوں کے، سمجھو پاک و ہند میں، ہند کے مسلمان میں بھی ادب بہت ہے، اور پاکستان ادب میں شاید اس کا مقابلہ بہت مشکل کوئی کرے، تو یا جیسے بنگلہ دیش ہے، تو یہ سب ہمارے حصے ہیں، آگے چل کر سب مطلب ایک ہی طرح کے، یعنی اردو اسپیکنگ ہم لوگ جو ہیں، تو ان ممالک میں ادب ہے، باقی کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا۔ اخبارات جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹ بین میں، حالانکہ اخبارات میں مذہبی آرٹیکلز ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں جو بھی اسلامی ممالک میں خاص کر ہوتا ہے، لیکن کوئی ادب وغیرہ کا ذہن نہیں ہے، وہاں بکتے بھی کہتے نہیں، جیسے ہمارے یہاں بکتے ہیں نا اخبارات، تو وہاں بس وہ پھینکنے کا رواج ہے، بہت کچھ پھینک دیتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے سے، کوئی بھی بولی بولتا ہو مسلمان اس کو اتنی سمجھ ہے نا، اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہو تو اس کا ادب ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا۔ میں نے لٹریچر ایسے مطلب لیٹر پیڈ کے کاغذات بہت سارے، جس میں رب زدنی علما یا اس طرح کی دعائیں، اور یہ لکھے میں نے کچروں کے ڈھیر سے خود اٹھائے ہیں، پھینکنے کا رواج ہے، خدا کی پناہ۔ اللہ پاک توفیق دے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کے تعلق سے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر والدین بچپن سے اور اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹیچرز، کیونکہ دینی مدارس میں تو الحمدللہ اس طرح ادب وغیرہ کے تعلق سے جو عاشقان رسول کے ادارے ہوتے ہیں اس میں تو یہ باتیں رہتی ہیں، لیکن والدین اور دیگر جو ٹیچرز ہوتے ہیں اگر یہ شروع سے ہی بچوں کو اس طرح ادب کا درس دیتے رہیں، ادب کی باتیں بتاتے رہیں اور ادب کے طور طریقے جو ہونے چاہیے وہ سکھاتے رہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادب اور بڑھتا رہے گا اور دنیا میں اس کو مزید اس کی اشاعت ہوتی رہے گی؟ بے شک سکھانا چاہیے۔ فیضان بسم اللہ یہ باب ہے فیضان سنت کا، اگر اس کا درس گھروں میں جاری ہو جائے نا تو اللہ کرے گا بہت فرق پڑے گا، اس میں ادب آداب کے
वाक़यात अहादीस वगैरह मौजूद हैं। या पहले हम लोग रोटी का टुकड़ा भी ज़मीन पे देखते थे ना तो उठा के चूमते थे, चूम के साइड पे रखते थे। अब रोटियां डस्टबिन के अंदर, यहाँ का तो खुदा बेहतर जाने, लेकिन बाहर तो देखा मैंने। तो या कोई कागज़ है जिस पर मतलब अल्लाह का नाम लिखा है, या वैसे ही उर्दू अरबी लिखा हो तो उसका भी बहरहाल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, हरूफ, इनकी भी ताज़ीम तो है। खुसूसन अरबी की तो है ही है, उर्दू के भी चंद के अलावा बाकी हरूफ सब अरबी के ही लिए हुए, इन सब का अदब है। बल्कि ये भी कौल है कि सारी ज़बानें इल्हामी हैं, तो जो इंग्लिश का भी फिर घूम फिर के अदब आ जाता है। लेकिन अब तो इम्पॉसिबल है अदब करना इन मानों कर। जैसे टाइलें बनती है उसके नीचे इंग्लिश लिखा होता है, टाइलें हमारे फर्श पर बिछती हैं, कमोड, WC, बोर्ड बेसिन, ये हाथ धोने के जो होते सब में लिखा हुआ होता है। मैंने कहा अब बचना समझो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में ज़रा नाजायज़ भी नहीं कहा जाएगा इस तरह की चीज़ों को, हर तरह की नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर नऊज़ुबिल्लाह तो ही है नहीं, तो उसका तो अदब अब किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सब अदब नहीं करते, अदब किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तमाम आशिकान रसूल को जश्न मिलाद मुबारक हो। 1500वां जश्न मिलाद आयशा खत्म नबूवत। आओ दीवानो झूम के बोलो, आला मोहम्मद झूम के बोलो। हम 1500वां जश्न मिलाद धूमधाम से बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। शुक्रिया आपका मीर आले सुन्नत। आपने अपनी दुआओं, मेहनत, कुर्बानियों के जरिए लाखों मुसलमानों को दीन की राह दिखाई। आपकी काविशों से आज घरों में सुन्नतों की बहारें हैं और दिल इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हैं। सुन्नत मैंने 12,000 मरतबा दूध पाक पला और 500 मरतबा दूध पाक लिखा है। इसका स्वाब मैं आपको पेश करता हूँ। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। कर क़यामत मरहबा, कर क़यामत मरहबा, हुजूर क़यामत मरहबा, नूर क़यामत मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसों की, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को नज़र आ रहा है, इसको भी आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप, इनको माँ बाप और सारे ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा। মিরে আহলে সুন্নতের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকের যুগে যখন মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক চাপ, বেতনের চুক্তিগত জটিলতা বেড়ে গেছে, এখন ইসলামিক শিক্ষার আলোকে
আজির মজুর কর্মচারী মজুরি সময় মতন দেওয়ার দাবি কিভাবে পূরণ করা যায় এবং এতে নিয়োগকর্তা শরিক নিয়োগ দায়িত্ব কি কি। बंगला ज़ुबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि आज के दौर में जब महंगाई बहुत ज़्यादा है और मुलाजिमीन यानी मजदूरों को वक्त पर पूरी तनख्वाह देना मुश्किल समझा जाता है, तो इस्लाम की रोशनी में ये बताइए कि एक मालिक को अपने मुलाजिम को तनख्वाह किस तरीके से देनी चाहिए और इस मामले में मालिक और मुलाजिम दोनों की क्या शरई और अखलाकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सवाल है और जगह जगह ये तो होता हो ऐसा। तो हदीस पाक में तो है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। अब जब तक मजबूरी नहीं है तो मजदूरी तो उसकी जल्दी जल्दी देनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ ये कि पहली तारीख को तनख्वाह दी जाती है आमतौर पे, तो पहली तारीख को फिर इससे लेट ना करें कि ये जो छोटी आमदनी वाले लोग होते हैं ना, ये बाज़ वक़्त आखिरी दिनों में इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये बेचारे उधारी पे चल रहे होते हैं बाज़ वक़्त। जब तनख्वाह मिलती है तो वो उसको अदा करते हैं कि पहली तारीख को तनख्वाह आई तो मैं दे दूँगा। अब पहली तारीख को तनख्वाह नहीं आई तो बेचारा यहाँ भी झूठा पड़ा, वो तकाजा अलग करेगा, यहाँ दिल दुखेगा इसका वगैरह, बहुत सारी सूरतें होंगी। तो इसलिए तनख्वाह देने में जब देनी है तो कल के बजाय आज क्यों नहीं देते। जैसे पूरा इसका महीना हो गया, इसका हक बन गया उजरत का जो तय हुई थी, अब उसको दे दी जाए। बिला वजह लेट करना ये ठीक नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अमीर सुन्नत, आपको 1500वां जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा आपसे ये सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। मैं तो समझे शेर के माना पूछेंगे, ये सवाल ही बोल रहे हैं शेर, अल्लाह बेहतर जाने। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। यूं तो बोलने वाले एक से एक पढ़े, ज़बान किसको नहीं मिली। हाँ, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, हम भी बोलना जानते हैं, लोग बोलते हैं तो, लेकिन मैं निसार तेरे कलाम पर, आपके बोलने पर कुर्बान कि आप जैसा दुरुस्त फसीह व बलीग न किसी ने बोला न कोई बोलेगा जो आप बोलते हैं, है ना। तो मैं इस पर कुर्बान जाऊँ। ये सुखन है ना, आपका बोलना वो है कि जिस पर कोई बोल नहीं सकता कि इसमें कोई ये खामी है तो ये खराबी है, ये ऊंचा हो गया तो ये नीचा हो गया, तो ये हर्फ कम हो गया, ये हर्फ ज़्यादा हो गया, तो जेर ज़बर का कोई फ़र्क आ गया, कुछ भी नहीं बोल सकता। आपके वो सुखन है कि जिसमें कोई सुखन नहीं। ये वो बयां है जिसका बयां नहीं। आप जो भी फरमाते हैं, जो भी बयान करते हैं, बयान बोलना कहना, तो जो आप कहते हैं ना वो भी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई कह नहीं सकता। वो बयान है जिसका बयान, यानी इसकी तारीफ हम बयान कर ही नहीं सकता, ऐसा उम्दा बोलते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, एक SMS के ज़रिए से सवाल किया गया है। मोहम्मद खिज़र भाई ने यह सवाल किया है, कहते हैं कि क्या जिस तरह कुरान की तिलावत लगाकर गुफ्तगू और दीगर कामों में मशगूल होना गुनाह है, नात ख़ानी के हवाले से क्या हुक्म है कि दुकानों पर ज़ोर ज़ोर से नात लगाकर दूसरे कामों में मशगूल हो जाएं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है। सवाल में हुक्म लगा दिया गया है कि जैसा कि तिलावत की रिकॉर्डिंग लगाकर, रिकॉर्डिंग तिलावत लगाकर काम में मशगूल हो जाना गुनाह है, तो गुनाह नहीं है। ये सूरत गुनाह की नहीं है।
अगरचे अदब इसी में है कि चलाए तो उसको सुने, वरना फिर ना चलाए। अल्लाह का कलाम चल रहा और इधर उधर बातों में मशगूल है, कामों में लगे हुए, तो ये अच्छा नहीं लगता। गुनाह उस सूरत में होता है जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, है ना। जैसे कि सारे कुरान सुनने के लिए जमा हुए, अब कुरान पढ़ा जा रहा है तो सब पर फर्ज आइन है कि सुने, ना सिर्फ सुने, कान लगाकर तवज्जो से सुने, ये फर्ज है। अब जो नहीं सुनेगा वो होगा गुनाहगार। या फिर ये कि ये सूरत नहीं है और कोई तिलावत कर रहा है जोर जोर से, तो अब ये कि कम से कम एक सुनने वाला हो मजलिस में, इसकी भी सूरत है कोई, है ना। वो एक सुनने वाला हो, एक सुनता है तो फिर दूसरे नहीं भी सुनते तो वो गुनाहगार नहीं होंगे। और ऐसी जगह कोई तिलावत करता है कि जहाँ है काम काज में लोग कि वो सुनेंगे नहीं, तो अब ये तिलावत करने वाला जो बुलंद आवाज से कर रहा है ये गुनाहगार है। ये फकीर वगैरह भीख मांगने का भी एक अंदाज है। तिलावत कर रहे तो लोग रहम खा कर हाफिज साहब है, अब एक आध रुकू रट लिया होगा इसने, तो ये मतलब जोर जोर से पढ़ रहे उधर भीख मांग रहे, ये भी जायज़ नहीं है कि लोग सुन नहीं रहे, लोग तो आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। तो ये तिलावत और कुरान अल्लाह का कलाम ऐसा नहीं है, इसको इस तरह पढ़ा जाए, इसके अपने आदाब है। यहाँ तक कि बच्चा भी अगर दुरुस्त पढ़ रहा है और तिलावत कर रहा है तो उसको भी सुनना होगा। अब रहा नाते पाक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हमारी आंखों की ठंडक है, लेकिन जो तिलावत के अहकाम हैं सेम नात शरीफ के अहकाम नहीं कहा जाएगा इसको। तो ये कि अगर नात शरीफ चल रही है और कोई कामकाज भी कर रहा है और नात शरीफ के आवाज़ कानों में रस घोल रही है और उसको सुरूर आ रहा है, तो इसमें भी मैं समझता हूँ हर्ज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल, माह मिलाद, माह रबीउल अव्वल जारी है। 1500वां जश्न विलादत की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और ख़ूब इसमें आशिकान रसूल अपना हिस्सा ले रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। मगर एक और जो शुक्र का पहलू और शुक्र का लम्हा हमारे करीब आ रहा है, वो दावत इस्लामी के 44 ईयर पूरे होने का एक वक्त आ रहा है और ये 2 सितंबर को यौम दावत इस्लामी है। ये तकरीबन 8 रबीउल अव्वल का मोबिश होगी मंगल, तो इंशाल्लाह यौम दावत इस्लामी। और दावत इस्लामी का ये एक बड़ा प्यारा सा मैगज़ीन भी आया है, या मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखेंगे, फैज़ान दावत इस्लामी। माशाअल्लाह 44 ईयर पूरे होने पर हमारे अल मदद इल्मिया ने दावत इस्लामी के उन्वान पर एक मानामा अपना एक मैगज़ीन जारी किया है और इसके इब्तदा में आप अमील सुन्नत का मज़मून देखेंगे, हर मुखालिफत का जवाब दीनी काम, और साथ ही साथ और भी मज़ामीन है माशाअल्लाह। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अमील सुन्नत के ताल्लुक़ से है। अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह अमील सुन्नत को सलामत रखे कि जिनकी दूरअंदेशी और जिनकी बसीरत और जिनकी जो रहनुमाई है सबके इल्म है माशाअल्लाह। दावत इस्लामी शब व रोज़ तरक्की जिस तरह कर रही है, अल्लाह और उसको तरक्की दे, नज़र बस से बचाए। तो इस तरह के कई मज़ामीन आप ये देख सकते हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कि अवामी आ गई और दावत इस्लामी, यानी दावत इस्लामी ने किस तरह इसको अवामी तौर पर भी मशहूर करने की कोशिश की है। मस्जिद दर्स के ताल्लुक़ से इसमें मज़मून आपको मिलेगा, काफ़िलों के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसमें मज़मून मिलेगा, मदरसतुल मदीना बालिगान के ताल्लुक़ से आपको इसमें मज़मून मिलेगा, दावत इस्लामी और खिदमत हदीस के ताल्लुक़ से आपको इसमें इंशाअल्लाह मज़मून मिलेगा। और भी कई इसमें मज़ामीन आपको अल्लाह की रहमत से मिलेंगे। अल मदद इल्मिया डिजिटल लाइब्रेरी की अहमियत, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की फ़लाही खिदमत जो वेलफेयर का काम है FGRF, इसकी आपको इसमें मालूमात मिल जाएगी। बैनुल अक़वामी तौर पर दावत इस्लामी के दीनी
कामों के ताल्लुक से आपको मालूमात मिलेगी। मदनी चैनल ने बच्चों को क्या दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको पता चलेगा। बुजुर्गों का मदनी चैनल, ये भी पता चलेगा। दावत इस्लामी में इस्लामी बहनों के ताल्लुक से पता चलेगा। और दावत इस्लामी का मख्ततुल मदीना और इसका इशाती जो इदारा है जो पब्लिश करता है किताबें, इसके बारे में लिखने वालों के नाम अमील सुन्नत का पैगाम, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको मजमून मिलेगा। और दावत इस्लामी के दीगर शोबाजात का भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपको तारुफ मिलेगा। और इसके बैक पेज पर आपको ये भी खूबसूरत सी पेज ये नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो इसका ये 50 रुपया दिया, 50 रुपीज़ ये मख्ततुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं। और इसकी PDF इंशाल्लाह हम जारी करेंगे, आपको इसकी PDF मिलेगी। मैं अमीर सुन्नत अर्ज़ करूँगा तो 2 सितंबर को हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ये जो पीछे आपने टाइटल, बैक टाइटल बता ना, ये क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है तमाम मुसलमानों को सबसे आखिरी नबी का 1500वां जश्न विलादत मुबारक हो। क्यों बोला मैंने आपको? हमारे यहाँ नाबीना इस्लामी भाई भी होते हैं। जी जी। इन विचारों को क्या पता कि पीछे क्या है। और उर्दू ना, क्या बात है, 44 ईयर पूरे हो रहे हैं हुजूर। 4/11 आपको एडवांस में मुबारकबाद। खैर मुबारक। और जब आपने बोलना शुरू किया ना तो आपने नाम लिया मिलाद का, पूरे 11 बजे दिखा रहा था स्क्रीन पर, तो मैंने उसको छूमा। तो लोगों को तशवीश भी होती होगी क्या किया इसने ये। तो 11 का कांटा कहाँ जाता है? 12 पर। किया गौर जब 11वीं 12वीं में मुहम्मा ये हम पर खुला गौसे आदम, गौसपा का दामन पकड़ा है, मुस्तफ़ा के कदमों में ले जाएंगे। तो यूं मतलब ये कि 4/11 हुए 44 में, 44वां है, 11 चौक 44। तो अब 44वां साल आ गया ना माशाअल्लाह। तो ये इसको किस तरह मनाएंगे, क्या क्या करना है आप बताइए। मैं बताऊं? आप ही बताएंगे। आप हो हमारे जामियातुल मदीना वालों को अगर आपने मौका दिया तो ये तो अभी से शुरू कर देंगे। ये दर्स देने में बाज जामियात मास्टर है, बोले हम 4400 दर्स देंगे। अरे वाह। मगर 2 सितंबर तक देंगे किसे? 2 सितंबर तो ये आया, मंगल को कब है? जी जी मंगल को है ना। ये कैसे करेंगे 4400? तो इनको फिर कोई फैसिलिटी देनी पड़ेगी आपको कि इसकी खुशी में 11वीं शरीफ या 12वीं शरीफ के अंदर, 12वीं शरीफ के अंदर 4400 दर्स अगर ये दे सकते हैं तो देखो कौन पैगाम देता है। बाद जामियातुल मदीना तो मास्टर है इसमें, अभी खुद जाएंगे हम आए। वो तो मोबाइल हाथ में रख के बैठे होते हैं कि आपका हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाले। वो मोबाइल हाथ में रख के बैठे होते हैं कि या ऐलान हो, और हम इसको पकड़ा उसको पकड़ा दर्स देते होंगे। तो और क्या, तो चलो एक को भी दिया तो ये नेक काम ही किया ना यार। तो माशाअल्लाह ये कर रहा है। और फिर ये कि अपनी इसमें इस खुशी में आपको 2 सितंबर को अपने जो भी जिम्मेदार आने ना वो ऐलान करेगा हमने नए हाथ वो जो हो चुके हैं कि हम इस खुशी में आपको 12 माह के मुसाफिर इतने दे रहे हैं। तो ये अब वो 44 देते हैं, 144 देते हैं, अब कितने देते हैं ये इनके हाथ में। और जितना इनका काम है उतना ये जोर लगाएंगे जितनी इनकी कैपेसिटी है। तो खूब 12 माह के मुसाफिर जो नहीं बने अब तक वो भी बन जाओ, जो बन गए हैं बन चुके हैं उनको भी रिन्यू करने की इजाज़त है। रिन्यू नहीं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन भी करेंगे तो फिर 13 करने होंगे ताकि 25 हो जाए। कि 12 किए थे तब 13 कर रहे हैं। और अगर आप 15 करने तो और अच्छा है कि 1500वां जश्न विलादत है। तो बहरहाल लेके 12 माह वाले भी और बढ़े। और जिन मस्जिदों में दर्स नहीं होता और मैं दर्स शुरू करवाएं, जितने भी जिम्मेदार मुझे सुन रहे हैं वो इसकी पूरी लिस्ट बनाएं। जो जो चौक दर्स से महरूम है उन चौकों में चौक दर्स शुरू करवाएं। इलाकाई दौरे जहाँ ठंडे हैं वहाँ फिर
इसको उठाएं। अल्लाह का ही दौर है। मदारिसुल मदीना बालिगान, ये दावत इस्लामी का बहुत अहम शोबा, जिससे एक तादाद है, इसको वास्ता नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पता है ना कि शुरू में दावत इस्लामी का ये बहुत अहम काम होता था, मदरसतुल मदीना बालिगान, और इस्लामी भाई बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ते पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते होंगे। लेकिन पहले जो मैंने जो तजर्बा किया, देखा है कि इससे हमको काफ़ी इस्लामी भाई मिलते थे। वैसे इस्लामी भाई हो सकता है यहाँ भी हों जो पहले मदरसतुल मदीना बालिगान गए होंगे, फिर इज्तिमा में आना शुरू किया होगा, या आए भी होंगे और वहाँ भी गए होंगे, ये पक्के होकर माशाअल्लाह दावत इस्लामी का दीनी काम भी कर रहे होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि ये मदरसा जो पढ़ा सकते हैं, और जो तरीक़ा कार है कि पहले इसका जो भी कोर्स या टेस्ट जो भी तरीका अपना, उसको जब अप्रूवल मिले कि हाँ भाई आप पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाना है। अब ये बोले कि मैंने मतलब कुरान शरीफ तो बचपन से पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ाऊँगा, तो वो आप शीन को सीन पढ़ते और सबको सीन पढ़ा देंगे तो फिर वो मसला खड़ा हो जाएगा। तो दुरुस्त चेक करवा लें अपना। वैसे सबको ही चेक करवाना चाहिए कि मैं सही पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, कमी है उसको दूर करें। तो इस तरह मतलब ये करें। फिर जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता अब तक, वो अभी से कमर बांध लें कि मैंने मतलब कुरान दुरुस्त करना है। तो ये हम जो दिन मनाते हैं इसमें खाली वो दिखावा या मतलब वो खामा का मतलब नहीं, बल्कि इससे हम दीनी बेनिफिट लेते हैं, दीनी फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है। 1500वां जश्न विलादत तो खाली मतलब ये दिखावा नहीं है, हम इससे कितने दीनी फ़ायदे उठा रहे हैं ना। 1500 मस्जिदों का ऐलान भी तो किया ना, चंद रोज पहले किया था ना, बन भी रही है, कभी स्क्रीन पर आता भी है ना इसका। तो इस तरह मतलब दीगर दीनी कामों में आप मतलब यानी कि दीनी कामों की तरफ पूरा जोर लगाएं। हर महीने 3 दिन सफ़र की कम से कम, ये पूरा ये 44वां है तो 45वां जब तक आए कम से कम इसकी तो नियत कर दें कि हर महीने 3 दिन काफिले में सफ़र मैंने करना है। रिसाला नहीं पढ़ते थे, नहीं सुनते थे, वो नियत करें कि आप मैंने पढ़ना और सुनना है पूरा मतलब ये साल। तो 12-12 महीने की नियत करने, फिर एक्सटेंशन भी कीजिएगा इंशाअल्लाह। दीनी काम नेकी के काम तो जिंदगी भर करने, मरने के बाद तो आएगा नहीं मौका। एक सुभान अल्लाह भी कहने की इजाज़त नहीं मिलेगी मरने के बाद। अभी मौका है, जो हम कर सकते हैं कर गुजरें तो हमारी आखिरत के लिए ये बड़े फ़वाइद होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या शुक्राने के नवाफिल का भी कोई इत्तिमाम करें? जी 11:11 हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, डबल 11 आ गए माशाअल्लाह। तो ये नवाफिल 2 तारीख मंगल को है ना। तो अगर ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है, इशा के बाद पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है। मंगल और बुध की दरमियानी शब अभी 2 सितंबर बाकी होगी। जी हाँ, क्योंकि वो 12 बजे तक दिन होता है ये शमसी साल का सने ईस्वी का। तो आप बेशक मंगल को इशा के जो नमाजें पढ़ लेते हैं, फ़र्ज सुन्नतें वगैरह, इसके बाद मतलब 2 नफल हर मस्जिद में अगर ऐलान के साथ बोर्ड लगे, ऐलान हो, तशहीर हो कि 2 नफल शुक्राने के पढ़े जाएंगे। दावत इस्लामी बनी इसमें, और जिस चीज़ को दावत इस्लामी ने फ़ायदा पहुंचाया है इसको की तादाद शायद लाखों नहीं करोड़ों होगी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो उन सबको अगर ये लगता है कि मुझे शुक्र अदा करना चाहिए तो उन मेरे मदनी बेटों और मदनी बेटियों को कोई और उज़्र ना हो तो ज़रूर 2 नफल पढ़िएगा मंगल और बुध की दरमियानी शब शुक्राने में। तो ये मस्जिदों में खूब धूमधाम से इसकी अब जमातें कायम करें। इमाम साहिबान जो भी अपने जिम्मेदारान हैं वो जमात कायम करें इशा की नमाज के बाद। ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा, नहीं तो लोग फिर मुंतशिर हो सकते हैं। तो जो हैं वहाँ वो भी और दूसरे बाहर से भी अल्लाह करेगा तो इधर उधर से इस्लामी भाई भी इधर उधर नमाज अगर इशा पढ़ी भी होगी तो आपकी मस्जिद में वो काम धंधा भी होता है ना, हो सकता है पहुँच जाए। और कहीं ऐसा हो कि वो जमाई लेट होंगे तो आपस के मुशावरत से वो उसके कुछ और टाइम रख लें घड़ी का कि भाई फुलां टाइम पर हम करेंगे, तो 2 नफल में देर क्या लगेगी। तो ये सब इस्लामी बहनें अपने घरों में पढ़ें। जो बाजमात हाजिर नहीं हो सके काम काज की वजह से, वो अलग से भी पढ़ सकते हैं अपने घर में
और इसकी खूब मैंने वीडियोस बनाए और इसको भले मदनी चैनल वाले भी अगर मुमकिन हुआ तो इसको चलाएंगे इंशाअल्लाह। कई बाज़ारों मार्केटों में जहाँ बिजनेस टाइम होता है, लोग ज़ोहर की नमाज के लिए जाते हैं, तो हमारे इस्लामी भाई एक तो नमाज की दावत देते हुए मस्जिद में भी ले जाएं ताकि जमात के साथ ज़ोहर की नमाज पढ़ें, और हो सकता है मार्केट के टाइमिंग में अगर ज़ोहर की नमाज के बाद भी 2 रकात नफल का ऐलान हो जाए तो भी मार्केटों में नमाजियों की तादाद ठीक ठाक पाई जाती है, कई इलाकों में पाई जाती है। और ये दुनिया भर के लिए आशिकान रसूल दुनिया भर के लिए। तो आदमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हुज़ूर का हम 2 रकात नफल की आम मस्जिदों में तो यहाँ जैसा माहौल बाजार का जोर में ही जमेगा, असर के बाद नफलें पढ़ नहीं सकते। सही है, मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं, कहीं ऐसा माहौल है मगरिब के बाद हम पढ़ेंगे तो ठीक है। ठीक। तो इस तरह मतलब हम जो है हम मंगल को ईशा के बाद, ये किस वक्त गैदरिंग ज्यादा होती है? ईशा के बाद, ठीक है, मदीना में ईशा के बाद मदीना है ना, ईशा के बाद पढ़ लें नफलें मंगल को, मदीना हो जाएगा, मदीना इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हम सब ये इस अहम तरीन नेक काम को भी करने में कामयाब हो जाए। आमीन, आमीन। और ये शुक्र का पहलू है, शुक्र का वक्त है। अल्लाह पाक ने हमें दावत इस्लामी जैसी तंजीम अता भी की और हमें इससे वाबस्ता भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी देखो नेकियों का काम करवाती है, दिन भी आए तो इससे हम फायदा उठाते हैं, तो दीन का फायदा उठाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। शेख साल रबीउल अव्वल में रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनियाए आबोगी में तशरीफ आवरी पर 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये एक गैर मामूली तारीखी वाक़या है और उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौमी रहमतुल आलमीन व खातमुन नबीयीन अथॉरिटी इस मौके पर सीरत के पैगाम को आम करने के लिए रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक जामे प्रोग्राम बना चुकी है। इंशाअल्लाह पूरा महीना रबीउल अव्वल का पूरे मुल्क में तकरीबात होंगी। सीरत फेस्टिवल्स के उन्वान से बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जिसमें नौजवानों को खास तौर पर इस जानब आमादा किया जाएगा, इस जानब मुतवज्जो किया जाएगा कि वो रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और आपकी सीरत को जानें, और इसके बाद दुनिया के सामने वो जो इल्हाम इकबाल ने तो जो दिलाई थी कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, इस मिशन के साथ निकलें और दुनिया को बताएं कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही और आप ही की सीरत दुनिया को मसाइल से निकाल सकती है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि हम सीरत के इस पैगाम को आम करें। दावत इस्लामी ने आलम इंसानियत को रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ मुतवज्जो करने के लिए एक भरपूर हमजहती मुहिम उठाई है और अथॉरिटी इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के साथ मिलकर सीरत के पैगाम को आम करेगी और इनका जो काम है उससे इस्तेफादा करते हुए इल्म की दुनिया में, दावत की दुनिया में, अबलाग की दुनिया में, इस सारे कामों से हम इस्तेफादा करेंगे और मिलकर सीरत के पैगाम को आम करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अपने हमारे मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के नाजिम साहब हसन रज़ा मदनी ये पैगाम दिया है। 11वीं शरीफ तक 4400 दर्स मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के तलबा इकराम दावत इस्लामी के 44 साल मुकम्मल होने की खुशी में देंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आपने भेजा कुछ? अच्छा, यही भेजा, भूखा दुआ से खाएं, कहीं से भी लग जाए और स्क्रीन पर आ जाए, सुभान अल्लाह, ऐलान हो जाए। चलो भाई, जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना बैठे बैठे हसन रज़ा मदनी ने फैसला कर लिया, आपके नाजिम ने, सारे पूछेंगे इसको यहाँ बैठे हुए सामने, अब आपने इनकी लाज रखनी है इंशाअल्लाह करीम। और भी अच्छा एक और पैगाम यही है इंशाअल्लाह करीम। 11वीं शरीफ तक 4400 दर्स मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के तलबा इकराम, ये तुमसे में। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, नाज़िम तखस्सुसात अबू मुआविया सैयद उस्मान बुखारी ने भी पैगाम
नवाजा है पैगाम से कि तखस्सुसात जिसमें तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, तखस्सुस फिल लुग़ा, इनके बाद तो है। अच्छा, तो तखस्सुसात जौहर टाउन लाहौर के तलबाए किराम नियत करते हैं माशाअल्लाह, इतनी जल्दी कर ली नियत कि इंशाअल्लाह ताला 11वीं तक 11वीं तक, अच्छा पंजाबी गाफ फारिग कर देते ना, 11वीं तक 4400 दर्स देकर हम पैगाम भी दे देंगे। इनको पैगाम दिया। अच्छा, बहरहाल ये क्या है, इन्होंने भी ये नियत की है कि इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ तक 4400 दर्स देंगे लाहौर वाले तखस्सुसात। हमारे यहाँ तखस्सुसात शायद इसमें शामिल हैं, यहाँ पूरा जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। ये नूर मुस्तफ़ा वाले खामोशे में से सबसे पहले वरना यही होते हैं, शायद इनको पैगाम ही नहीं पहुँचा होगा। जामियातुल मदीना नूर मुस्तफ़ा ही है, मैंने देखा पेश होते हैं इस तरह के कामों में, आएगा इंशाअल्लाह इनका पैगाम भी। अच्छा, जामियातुल मदीना जंग के तलबा किराम भी 1500 दर्स देंगे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो और ममालिक में भी जामियातुल मदीना है, देखो वो क्या करते हैं। और दावत इस्लामी के दीगर जिम्मेदारान अपने अपने हलकों के ताल्लुक से ये क्या करते हैं, अभी इंतजार है ना। जामियातुल मदीना फास्ट है माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शेख अबुल हसन बिन सिंजारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर दुनिया के सरदारों में से एक हैं और आप रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह पाक के तहाइफ में से मखलूक के लिए तोहफ़ा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हमें मदनी मुज़ाकरे में ढेरों इल्म और हिकमत के मदनी फूल मिलते हैं, इल्म में इजाफ़ा होता है, वहीं अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद बनाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। अमीर अहले सुन्नत तौबा भी करवाते हैं। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए देख सुन रही हैं, वो भी बेअत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएँ तो आप सनाना अल्फाज दोहराएँ। इस्लामी बहनों को शोहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के सिलसिले में मुरीद करवा दीजिए। इसका तरीका ये है कि अगर अभी स्क्रीन पर नंबर चलाया जाए तो इस नंबर पर आप अपने बच्चों के नाम, उम्र, एड्रेस वगैरह भेज दें तो आपको आपके बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद कर लिया जाएगा। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद है वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, अमीर अहले सुन्नत से तालिब हो सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत जब फरमाएँ कि मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहें कि तालिब होता हूँ मैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर कामिल ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद या तालिब होना चाहते हैं, उन्हें अपना मुरीद और तालिब कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी